Alright, hey everyone, this is Indu Munchal from Gupshup series. Today I'm here with episode number 69. और आज मेरे जो गेस्ट है ना, she is an ultra runner from Kolkata and she is here with us. So let me first accept her request. Okay, yes. Specific reason. Alright, hi ma'am. Alright. Oh, yeah, so nice to share the screen with an ultra runner and inspiring runner from Kolkata, right? Ma'am, very warm welcome to Gupshup series. Thank you so much for having me here. Yeah, ma'am, we all are looking forward for this session because हमें इतना कुछ जानना है ना आपसे. We want to have that, running journey unfold करना है आपका कैसे कैसे सब किया. So we are really looking forward for that. Sure. I think we should start our gupshup, right? मैम क्या चीज थी जिसने रनिंग की तरफ आपको पुश किया? Okay, before answering this, let me ask you something. Do you believe in manifestation? Yes, I do. You do, And I I guess believe many it of us does. yes, right. Yeah. So it was this, it was in 2023 की बात है and दुर्गा पूजा चल रहा था. So अष्टमी वाला दिन था and I was like function Right. होता है society में. I was just sitting along जी with my जी friends. Yeah. Okay. So उस टाइम बात हो रही थी about ब्रह्म मुहूर्त. And अच्छा like waking up at Brahma Muhurat and this and that and uske फायदे and because waking up at such early time is one big task. It's not easy. picked up. So It's not easy. you Agree. know उस टाइम बात करते करते ऐसे ही मेरे मुंह से निकला कि I really wish कि I could wake up at ब्रह्म मुहूर्त. मेरे को इतनी हिम्मत मिले मैं उठ पाऊं. बस मेरा बोलने का Okay. देरी था एंड एक हफ्ते बाद आई सॉ वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्टेटस स्टोरी ऑन इंस्टा वेयर आई सॉ हर वर्क रनिंग अराउंड इन ग्राउंड एंड डूइंग एक्सरसाइजेस एंड ऑल. So I was curious. I got curious because I was into fitness since long time, like 2014, I guess, 14 or 15. मैं जिम करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ. तो I just asked her कि यार ये तुम लोग ग्राउंड पे क्या करते हो? And she was like, बताऊंगी नहीं, तू बस आ जा. एक दिन आके देख क्या हो रहा है यहाँ पे. So I went one fine day, Saturday था. I went there to see. I was curious. तो मैंने देखा exercise हो रहा है. Then they introduced me to everyone. And then they said चलो थोड़ा run करके आएंगे. I was like okay. Sunday फिर से training वाला दिन था. Again I went. Again run हो रहा है. Okay. It was next. उसके अगले week I got to know that it is a marathon training group. मतलब it is a group which trains for marathon. Right. Yeah. So मतलब वो 2 दिन ही काफी थे मेरे लिए कि मेरे को इतना अच्छा लगा ग्राउंड पे जाना, सुबह उठ के वहाँ एक्सरसाइज करना, सबसे मिलना, बातें करना, गप्पे मारना. वो तो हमारा वो होता है. Right. Yeah. Then I started going. I became the part of the group and I started going and that's how it started. So मतलब ये था कि मैंने manifest किया था ब्रह्म मुहूर्त पे उठना. वो इस तरह से फुलफिल होगा ये मुझे नहीं पता था कि मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ रही हूँ एंड आई एम गोइंग फॉर द ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड. यस एंड पीपल थिंक कि हम लोग शायद ना थोड़े से स्क्रू ढीला हो गया हम लोगों का. I mean my friends they are like तू पागल है 3 बजे उठती है, तू पागल है 4 बजे उठती है. I'm like right. Yeah, it is okay. We are happy. But I think वो जो आपने एक मैनिफेस्ट किया उससे रनिंग कम्युनिटी को एक बहुत अच्छा रनर मिला. This is what I feel. That's even really I nice. got benefited in many ways. Yeah, that's always vice versa thing. Individual basis पे तो हमें फायदा है ही है. But yes, you are inspiring so many around you. आपको पता भी नहीं होगा कि आप कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं. So I think we should keep that spark alive. So that's the thing which goes up. So ma'am, what was your first official run? ये तो था कि आप running में आए कैसे? And I think आप आए भी ना पूरे धमाके के साथ हो. Like full fledged running मतलब पूरा training group के साथ. So that was something जो बहुत कम रनर्स को फटाफट से मिल जाता है एक अच्छा ग्रुप. This is what I think. Yeah, definitely. I mean, see, like 2023 November, I joined the group, and उस time JBG आया ही था, JBG का होने ही वाला था event. I missed it. I couldn't register it.
एंड उसके बाद दिसंबर TSK आ गया. So अच्छा. my first official Okay. run was TSK 10 kilometer. Wow. That's nice. And it was not really difficult for me कि यार अभी नवंबर में ज्वाइन किया और TSK एक महीने बाद ही I'm running 10 kilometer, because लोगों का रहता है ना कि पहले 5 किलोमीटर करो, you have just joined, go for 5 kilometers. Right, But right. you know, in school time मैं रनिंग में हमेशा फर्स्ट आती थी. I used to take part sports में रनिंग में and I used to come first. So running was nothing like new for me. And since I was into gymming and yoga and fitness, so it was quite easy for me कि मैं चलो 10K के लिए register कर लेती हूँ. So 10K TSK was my first official run. एंड वही मुझे तो अब ये भी कहना पड़ेगा मैम कि आपका जो फर्स्ट ऑफिशियल जो इनॉग्रेशन था वो भी धमाकेदार हुआ. द TSK इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी. और जब आपका पहला इवेंट इतना अच्छा हो तो आई थिंक आपका जुड़ना तो लाजमी है. ये तो आपने ठीक बोला मैम कि ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि 5 किलोमीटर्स के लिए भी काफी टाइम दे, लाइक उनको लगता है कि हम उस लेवल तक पहुंचे. बट बीइंग फ्रॉम स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी काफी हेल्पफुल है. दैट्स रियली नाइस. नाइस मैम. मेरा भी यही हाल था. बिना प्रैक्टिस 21 42 चलो चलते हैं, देखी जाएगी. पंजाबियत बाहर आ जाती है, क्या करें. देखी जाएगी, कट्टे जाते करते हैं. बट थैंक गॉड कि हम लाइक इंजरी फ्री रहे. ये एक बड़ा टास्क था मेरा कि यू हैव टू बी इंजरी. सो मैम अभी जैसे आप आपसे बात कर रहे हो ना, मेरे को भी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि एक रहता है कि आप जब किसी किसी के साथ एक ऐसा ऑरा होता है जो बड़ा पॉजिटिव होता है. सो अभी मुझे ना आप जब बात कर रहे हो बड़े चहक रहे हो, राइट, यू नो यू आर सो यू नो एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग. So how do you maintain this, you know, this sort of energy या motivation जिसको हम बोलते हैं? Motivation in fitness or in generally you are asking like? Generally, क्योंकि I think journal impact ही रनिंग पे पड़ता है या फिर उल्टा भी हो जाता है. It is one and the same thing. नहीं, फिटनेस को लेके मोटिवेशन हमेशा से रही हूँ मैं. तो आई एम सेल्फ मोटिवेटेड फिटनेस के मामले में. मेरे को उतना नहीं जरूरत पड़ता कि कोई मोटिवेट करे. रनिंग डेफिनेटली मेनी पीपल मोटिवेट मी. थोड़ा सा रनिंग में अभी भी मैं आई एम लर्निंग मेनी थिंग्स. इट्स नॉट दैट आई एम प्रो और समथिंग. Yeah, but I think that's a beauty of being a humble person कि आप अभी सीख रहे हो. Right. Right. Like so, every distance I go, I get to learn something new. Be it a 10K, be it a 21K, I always learn. And मेरे को आज भी बहुत डांट पड़ती है for many things, especially hydration, which I don't take care properly. I still get lot many scoldings. मतलब सुनती नहीं हो, करती नहीं हो. ठीक है, I'm learning. I'm getting habituated. Being a learning kid is always beneficial. Right. Yeah, it's better to be a learning person than to सिखाने से अच्छा सीखो बाबा, खुद सीखो. बिल्कुल. मतलब आई थिंक इफ यू आर डूइंग सीख के तो सीख जाएंगे लोग, अपने आप देख के सीख जाएंगे. बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि समटाइम्स ना हम सिर्फ देखने भर से काफी चीजें अपने अंदर ग्रास्प कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं लगता एक्चुअली. तो मैम अभी लाइक इट्स बीन सो मेनी इयर्स यू आर रनिंग. सो आपका अभी तक का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है जो आपने रन किया अभी तक? My longest distance was the last December. I did 100K ultra run, border run, Jaisalmer. Wow. Yeah. Right. One longest distance I did, which I could have never imagined कि मैं करूँगी. Because ये attempt करने से पहले मैंने 42 भी नहीं किया था. Last I did was 25K. Okay. Yeah. All right. And मेरा पहला 25K was also TSK 25. 25. Okay. Yeah. So ये 100 भी आपने बिना 42 करे ही किया. Yeah. बिना तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया आपके लिए. It is special in many ways क्योंकि एक ये रीजन है कि मैंने उसके लिए 42 तक नहीं अटेम्प्ट किया था and I 25 के बाद सीधा attempted 100. And another reason, I am from Jaisalmer. I belong to Jaisalmer. So this place itself All right. Wow. बचपन की memories and it holds many things. And you won't believe, after completing my run, I went to that street जहाँ पे मेरा घर है. Wow. Yeah. So that would have been so nostalgic for you. Very much. मतलब so definitely this run is in many ways very special for me. It's a first ultra and that 200. I know. So yeah. And I think that too, hill race, it is incredible.
बिकॉज Yes. मैंने अभी जैसे रनिंग कम्युनिटी में आप आते हैं, बात करते हैं, पहला साल तो ऐसे ही निकल जाता है, उसके बाद आपको अच्छे इवेंट्स का पता चलने लगता है. सो whenever I talk to any runner, तो पहला वर्ड आता है हेल रेस या फिर वो लद्दाख रेस. दीज आर द टू रेसेस जो हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई उसमें जाना चाहता है एक्चुअली. Right, right, तो right. And मैम hell हमें तो race का एक्सपीरियंस I सुनना है tell आपका hell race का I पूरा tell you it's like एक्सपीरियंस. yeah, sure. Hell race का I tell you it's like craze है लोगों में आजकल. Hell राइट. race, जी they जी are जी. very, and for the only reason I guess they are very challenging. And there are people out राइट. there who loves taking challenges. राइट. And आई this hell थिंक race, रनिंग, this, यस, एंड्योरेंस रनिंग इज बेसिकली आपको कुछ टाइम के बाद लगता है कि यार कुछ और चैलेंजिंग होना चाहिए, तो आई थिंक वो हाई right, हमारा जाता ही नहीं है. तो हाँ, गेट ऑन टू दैट. मैम मुझे तो ये सारा कुछ जानना है क्योंकि आई थिंक दिसंबर में ये हर साल होती है रन, और आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की, व्हाट वाज योर माइंड सेट, आपने डाइट पे क्या क्या फोकस किया, हाइड्रेशन कैसे ध्यान किया, यहाँ से जब आप गए तो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन लाइक इन योर बैग, क्या क्या चीजें हमें लेके जाने चाहिए, क्योंकि काफी लोग ना ये क्वेश्चन मेरे पास हर बार डीएम में आता है कि मैम अगर आप क्वेश्चन पूछो तो हिल रेस का जरूर पूछना. तो क्योंकि सबके पास कुछ जुगाड़ होते हैं तो आज हम आपके जुगाड़ सुनेंगे. sure, sure. Like जब मैंने see इससे पहले I'll tell you one thing. When I was with the group, रनिंग ग्रुप, मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया था. इट्स लाइक जब वो ग्रुप छूट गया आई ऑलमोस्ट स्टॉप्ड रनिंग. आई थॉट कि आई वुड नॉट रन. आई ऑलमोस्ट गेव अप ऑन रनिंग बिकॉज उस टाइम तक आई डेंट हैड एनी रन पार्टनर टू लाइक कोई जाए साथ में. एंड दैट मीन्स आई वाज नॉट मोटिवेटेड कि मैं सोलो रनिंग के लिए नहीं जा सकती, मेरे को नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा. But God's, I guess, God had different plans for me. So I met a person who asked me like, "Will you go for a run? Go on a run for me with me?" I was like, "Yeah, चलते हैं." मतलब मेरे को तो I ठीक am है, अच्छा ready. लगता है. I am forever ready. And then Right. that's how Right. my actual running journey started. That's how I, मतलब उस समय मैंने actually सीखा running क्या होता है उनके साथ रन करके. So Right. yeah, तो फिर I started training with her. I started learning many things जो मैं पहले नहीं सीख पाई थी. तो and then one fine day she asked me कि कोमल border run करने चलेंगे 100 किलोमीटर. border run करने चलेंगे. She just told me this. जैसलमेर. And Okay. you won't believe this hell race. Right. जैसलमेर was my first outstation run. I had never imagined कि मैं कभी outstation run करने भी जाऊंगी because I was like मेरे husband is not gonna allow me for this. My son is just 12 years old. उसको इतना दिन छोड़ के and just for running I'll go outstation. मतलब ये चीज husband को समझाना बहुत लग रहा था थोड़ा मुश्किल difficult. है. This I can relate. This Yeah. I can relate. Yeah. तो like she told me, मैंने ये नहीं सोचा था मैं कैसे करूंगी. Like अगर मैं 50 के लिए भी जाती हूँ तो मैं 50 कैसे करूंगी. मैंने तो अभी तक 42 भी नहीं किया है. 42 भी But नहीं I किया. was so excited वो सुन के. And I was like हाँ चलते चलते मैं जाऊंगी. मेरे को ये नहीं पता हस्बैंड मानेंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं पता मेरी ट्रेनिंग कैसे होगी, मुझे ये नहीं पता मैं कर पाऊंगी कि नहीं, कुछ नहीं. मुझे बस एक्साइटमेंट होगी कि मेरे को जाना है, मैं जाऊंगी. तो बस वो था वो दिन. एंड द डे वी डिड बॉर्डर ट्रेनिंग तो ऐसी हुई ना कि वी फॉलोड जिन्होंने हमको ट्रेन किया. शी हरसेल्फ इज एन अल्ट्रा रनर एंड यू नो हर वेरी वेल, मीनू शर्मा. So all right. Right. Yeah. Right. She is a gem, I would say. She Yes. is, yeah. तो वो उसके पिछले साल ही 100 करके आई थी बॉर्डर का. So जी. she is the reason that we could do 100 kilometer successfully. So we followed her path, we followed whatever she asked us to do. मतलब वो जैसा जैसा बोलती थी, she used to make the training chart for us, पूरा बनाती थी. So we went for afternoon run, we went for night run, we went like 6 hours run. We are going 60 kilometer at a stretch. Night run कर रहे हैं. So there were many strategies. Like when you are going for border, it starts in afternoon 12. And you are given the cutoff for 100K, you are given the cutoff time of 16 hours. So you are running throughout the day and throughout the night. So आपको अपनी body cycle वैसी करनी है, आपको वैसी train करना है, that you will not get the sleep. And so whatever she said, whatever she planned for us, जो भी वो training plan बनाती थी, we used to follow एकदम religiously without asking anything.
एंड हाइड्रेशन एंड फ्यूलिंग का तो ये था कि सेम चीज लाइक वहां पे अगर आपको 60 किलोमीटर पे बॉर्डर रन में खाना मिल रहा है तो हियर ऑल्सो वी आर मेकिंग श्योर वट एवर इफ यू आर रनिंग 60 किलोमीटर तो हम लोग 45-50 पे एक बार रुक के खाना खाएंगे या इस राइट, तरह से है तो ताकि बॉडी को आदत हो। एग्जैक्टली हाँ राइट, एंड बाकी राइट, बीच बीच में तो इन बिटवीन किड्स ऑन मतलब जेल खा रहे हैं वी आर ईटिंग डेट्स एंड देन वी आर ईटिंग राइट, चिक्की हर वो चीज जो वहां आपको मिलेगी एट एवरी 10 किलोमीटर यू आर ईटिंग हियर राइट, या एंड हाइड्रेशन इज लाइक कैरिंग अ फुल बॉटल आपको 10 किलोमीटर का विद इन 10 किलोमीटर आपको पूरा 1 लीटर पानी खत्म करना है लाइक देयर आर मेनी छोटी छोटी चीजें विच शी केप्ट टेलिंग अस कि ये आपको करना है या और आई थिंक ये जो छोटी बात आप बोल रहे हो ना, यही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। अब जैसे मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है कि हम प्रैक्टिस में ही जो हमें जैसे जैसे खाना है वो हम चीज अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करें तो ही बेनिफिशियल हो। आई थिंक दैट्स रियली अ वेरी गुड पॉइंट जो बहुत सारे व्यूअर्स को काफी हेल्पफुल होने वाला है जब भी वो Yeah. वीडियो देखते हैं। ठीक है, इट विल बी वेरी like you know हेल्पफुल। सो there was मैम, one funny moment also हम लोग जब एक नाइट रन कर रहे थे 60 किलोमीटर का वी स्टार्टेड अराउंड इन द इवनिंग एट 6 or 7 o'clock वी स्टार्टेड एंड देन वी वर रनिंग तो ओके, उसके बाद जब हम लोगों ने खाना खा रहे थे यू नो एंड वहां पे आपको मिलेगा दाल चावल एंड रायता एंड बस यही मिलने वाला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको खिचड़ी या दाल चावल ही खाना है यहाँ पे ये नहीं कि आपको खाने में रोटी खा रहे हो या कुछ और खा रहे हो and we were ओके, like and acha and that also you have to eat plain khichdi not the masala khichdi because masala can upset your stomach yeah so and we were like हाय plain खिचड़ी कैसे खाएंगे थोड़ा सा अचार ले लेते हैं ना साथ में थोड़ा तो कुछ फील आएगा and हमको डांट पड़ रही है बस तुम लोग यही सब खाओ कुछ नहीं मिलने वाला है वहां पे राइट। जब वहां पे मिलेगा नहीं फिर दिक्कत होगी क्योंकि आवर टेस्ट बड्स आर लाइक दैट ना, यू कांट yeah ईट दैट ब्लैंक फूड। राइट। सो मैम जब आप यहाँ कोलकाता से वहां गए लाइक यू हैड अ वेग आइडिया इन योर माइंड कि वहां पे कैसा वेदर होगा बिकॉज ऑब्वियसली योर रूट्स आर फ्रॉम देयर, बट आपने कैसे प्रिपरेशन की? हाउ डिड यू पैक अप योर बैग फॉर दैट रेस पर्टिकुलरली? see where वहां पे it's December time और December Rajasthan side is like very cold very cold it's chilled नहीं मैम, वेरी कोल्ड हमारे यहाँ होता है, राजस्थान में नहीं होता। okay तो Right. मतलब मेरे लिए तो वो भी चिल्ड है भाई मेरे को मतलब एकदम से ठंड बर्दाश्त ही नहीं आई होता वाज नॉट जोकिंग, बिल्कुल। हाँ हाँ एकदम मतलब I mean, मेरे यहाँ कोलकाता से कंपेयर करूँ तो बहुत है बहुत ठंडी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है Right. सो लाइक आई एम फ्रॉम जयपुर ओनली तो मेरे को तो वहाँ की ठंड बहुत चिल्ड ही लगती है तो Right. like I said, she had already given us the things about The things, right. बताया था हम्म, कि इतनी ठंड होगी ऐसा करना होगा इतना पहनना होगा इतने लेयर्स डालने होंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नंदिनी जो हेल रेस वाले होते हैं ना दे गिव यू अ चेकलिस्ट ओके। कि आपको क्या क्या अपने साथ कैरी करना है हाँ, if you are running for 50 these are the things you need to carry if you are running for 100 these are the things you need to carry because वहां पे दो ड्रॉपबैक्स बनाए जाते हैं यू नो यू आर स्टार्टिंग इन द आफ्टरनून तो बहुत गर्मी है बहुत तेज गर्मी है गर्मी सूरज है। ऊपर है उस समय यू आर नॉट लेयर्ड एंड Yeah, बाय द obviously. टाइम इवनिंग की तरफ आप बढ़ते हो आगे बढ़ते हो जैसे जैसे शाम शुरू होती है यू नो इट्स गोना बी वेरी चिल्ड एंड तो यू नीड लेयर्स यू नीड स्वेटर यू नीड ग्लव्स यू नीड कैप तो वहां पर एक 60 पे ड्रॉप बैक बनता है यू चेंज देयर हाँ यू चेंज देयर पुट ऑन योर विंटर वेयर्स एंड देन यू कैरी ऑन विथ योर रन ये So, मतलब वेरिएशन क्या आई थिंक जी, ये वेरिएशन टेम्परेचर का जो है ये काफी मतलब एक्सट्रीम में आ जाता है, राइट? पहले हाँ बहुत गर्मी फिर एकदम बहुत फिर ठंडी। एकदम ठंडी एंड गर्मी का इज ओके मतलब हम लोग यहाँ भी गर्मी में ट्रेन करते हैं वी ट्रेन जी थ्रू आउट जी द ईयर जी। समर्स में तो बेस्ट होता है कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड समर इज द बेस्ट टाइम तो राइट, गर्मी का तो स्टिल थोड़ा आदत रहता है बट वहाँ की उतनी ठंड का हमको आदत नहीं है बिकॉज यहाँ उतनी ठंड नहीं आदत पड़ती है नहीं। पॉइंट। एंड तो फिर अदर हाउ डिड योर बॉडी रिस्पॉन्डेड? उस टाइम पे कैसा रिस्पॉन्स आया था? ठंड से होता ही है ना मैम, एकदम से यू फील लाइक दैट। नहीं सही बताऊं तो वी वर सो मच इन्वॉल्व इन फिनिशिंग द रन सिंस इट वाज फर्स्ट रन आल्सो बस टारगेट ये था भाई कैसे भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाए कुछ मत सोचो चलते जाओ भागते जाओ सो राइट, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ये था मैंने कुछ नहीं सोचा 60 किलोमीटर पे पहुंचे वी हैड आवर फूड एंड देन हम लोगों ने ड्रॉप बैक से निकाला एंड देन लेयर्ड अप हो गए
But then we realized, पता है इतना रन करके बॉडी वाज सो हीटेड कि वो ठंड उतना नहीं समझ आ रहा था। राइट। हाँ, हाँ ये भी एक पॉइंट है कि जब आप इतना भाग चुके हो तो भैया ऑटोमेटिकली इतना हीटअप हो चुके हो कि ठंड तो क्या ही फील होगी उस टाइम पे। बट आपकी हाँ योगा भी अच्छी है कि कुछ सोचो मत ज्यादा। ज्यादा सोचेंगे तो आई थिंक एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो जाएगी, अपना टारगेट पे ध्यान करो। आई राइट। नो, सच में दिमाग में बस यही था कि फिनिश करना है, फिनिश फिनिश करना करना है, अच्छे से फिनिश करना है। या एंड तो आई टेल मुझे यू ना, फॉर अदर रनर्स जो कि हेल रेस या फिर बॉर्डर रन के लिए जाने वाले हैं, अगर उनको ये थोड़ा सा चिंता है कि क्या क्या लेके जाना है, दे नीड नॉट वरी, बिकॉज हेल रेस वाले दे गिव यू वन प्रॉपर चेकलिस्ट, डिटेल्ड चेकलिस्ट विथ राइट। एवरीथिंग, लाइक नॉट जस्ट जेल और हाइड्रेशन का, बट व्हाट यू हैव टू वेयर एंड एवरीथिंग, बाकी सब कुछ। चीजें। Wow, that's really nice because if the race is going to be tough, तो I think preparation भी उससे ज्यादा टफ करके जानी पड़ती है, राइट? बिल्कुल। तो मैम जैसे 12 बजे स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे आपको प्यास बहुत लगती है एंड मैंने जो सुना है वो ये था कि 10 किलोमीटर के बाद ही पानी मिलता है, राइट? सो आप अपनी प्रैक्टिस में भी वो पानी को कैरी करके ही भागते थे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रैक्टिस में भी जेल्स और सॉल्ट टैब्स और इलेक्ट्रोलाइट सब कैरी किया था। व्हेन वी वर देयर फॉर लॉन्ग रन, तो हम लोग वी मेड श्योर कि हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड करें, वहां पे गेटोरेड और सब कुछ रख दें जो जो हमको लेना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट सारा इंतजाम हो। या तो वी टुक केयर ऑफ एवरीथिंग बिफोर हैंड। या क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक आई थिंक बहुत भारी पड़ सकती है। एंड व्हाट अबाउट रनिंग इन द नाइट, वहां पे कैसे एक्सपीरियंस था? लाइक डर तो लग ही रहा होगा नेचुरली, मैं तो सोच गई मेरे को तो होने लग रहा यार अकेले भाग रहे हो it क्या was very, करेंगे। it was literally scary, मतलब you know you are running on a deserted place, यहाँ पे रेगिस्तान पूरा, यहाँ मिट्टी मिट्टी है, bushes है छोटे छोटे, लाइट्स भी हार्डली वहाँ पे लाइट्स थी, एंड you won't believe like around I don't remember exactly 40 के किलोमीटर के बाद था या कुछ था, एक ऐसा थोड़ा सा पार्ट आया था जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा, नॉट इवन अ सिंगल लाइट, एंड यू नो वहाँ पे वो बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं। अच्छा। तो रोड रोड आपकी एकदम छोटी सी है, वो भी टूटी फूटी रोड है, नॉट इवन अ प्रॉपर रोड, इधर पूरा रेगिस्तान, इधर रेगिस्तान, बड़े बड़े विंडमिल्स है आपके सर के ऊपर, एंड एकदम अंधेरा है, पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ नहीं, और वो विंडमिल की आवाज आ रही है घर घर घर, मतलब उस स्ट्रेच पे तो लिटरली मेरी जान निकल रही थी, मतलब क्या हो रहा है, कोई सांप बिच्छू आ जाए पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, आपने खाली, इट वाज 70 किलोमीटर का बाद वाला स्ट्रेच, आई रिमेम्बर, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और आपके पास खाली वो हेडलाइट है, तो बस आप क्या फॉलो कर रहे हो, आगे वाले रनर को फॉलो कर रहे हो, इधर उधर देख के कोई फायदा नहीं है, सामने आपके कौन भाग रहा है उसको फॉलो करो और चलते जाओ बस, चलते जाओ। हाँ। मत ही देखो। बीच में 10 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा ही पूरा आया था यहाँ। जी जी जी। इट तो वॉज रास्ते स्कैरी। में जो लोकल लोकल पॉपुलेशन है क्या वो भी मिलती है क्या रास्ते ड्यूरिंग द रेस? ड्यूरिंग द डे मिल जाते हैं थोड़े बहुत, बच्चे बहुत हैं वहाँ पे, छोटे छोटे खड़े होकर देख रहे हैं, दे आर एक्साइटेड कि ये लोग कहाँ कैसे भाग रहे हैं, क्या पहनना है। या राइट। बाकी बट आई कोई थिंक किसी किसी को भी देख लो तो थोड़ा सा मन को हो जाता है ना कि हाँ चलो कोई तो खड़ा है ना कम से कम। या देयर इज समवन स्टैंडिंग। दे वर क्यूट, मतलब छोटे छोटे बच्चे, दे वर चीयरिंग अस एंड दे वर आस्किंग चॉकलेट्स, क्योंकि हम लोगों को तो वो मिलता है ना, what is that, peanut bar we get, yeah, yes. so they were like, they saw us having that, तो हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, so it was nice, daytime was really funny। हाँ हाँ, ये फन पार्ट। मैम जब आपने वो फिनिश किया उस टाइम पे क्या था, मतलब कैसे रिएक्शन था आपकी बॉडी का एक्चुअली? फ्रैंकली सेइंग नंदिनी, मैं उस टाइम भी कुछ नहीं सोची थी, बस मेरे को लग रहा था मन में फिनिश हो गया है, नाउ वी आर गोइंग होम, वाओ। फाइनली फिनिश हो गया है, आई एम गोइंग होम नाउ। राइट। एंड आई थिंक इट्स अ मोमेंट जो शायद जिंदगी भर कभी भूलने नहीं पाती ये चीज तो। And I would never be able to express कि मैं उस टाइम पे क्या फील कर रही थी, बस लिटरली एक बार के लिए तो मन में आया था, हे भगवान खत्म हुआ फाइनली, शुक्र है। मतलब सीरियसली स्टार्टेड एट 1200, भाग रहे भागे जा रहे वेट कर रहे कि खत्म हो। या That's amazing. I think मेरे को तो ऐसे लग रहा है, इसको इमेजिन करके ऐसे लग रहा है कि यार कुछ अलग किया, समथिंग डिफरेंट which was not part of our personality, but अब वो हमेशा के लिए। That's incredible. And you know what, when we planned for hell race, I was like मैं 50 करूंगी, क्योंकि मैंने तो अभी तक 42 भी नहीं किया है, मैं 100 कैसे कर सकती हूँ, पागल, मतलब I'll go mad।
तो मेरा ये था मैं 50 करूंगी. Like one of my friend Atul Ahuja, he's a runner too, he's a very good runner. Okay. He was like, कोमल पागल है, 50 मत करना, 100 के लिए जा, 50 is nothing. और फिर इतनी दूर जाके करेगी तो 100 करना, क्यों 50 करके आना है? I was like, चलो ठीक है, बोल रहे हो तो कर लेते हैं. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है ना कि भाई तो सो फार अवे प्लेस, तो आई थिंक कुछ बड़ा करके आते हैं. अच्छा डिस्टेंस करके आना है, Right. राइट, बड़ा डिस्टेंस करके आओ, राइट. क्योंकि आई डोंट नो, सी वी ऑल आर इन द फैमिलीज, प्रायोरिटीज हमारी दूसरी होती हैं, तो पता नहीं दोबारा चांस मिलता है नहीं मिलता है. सो एटलीस्ट ग्रैब दैट चांस रियली वेल. सो आई थिंक यू टुक अ वाइज डिसीजन एंड यू आर एन अमेजिंग रनर, आई वुड से. मेरे को तो मैं सारा इमेजिन करती हुई जा रही हूँ, क्योंकि अभी पिछले 3 एपिसोड से तीनों गेस्ट वर लाइक दे हैड डन हेल रेस. तो मुझे तो ना अंदर से चुलबुली उठ रही है कि अब तो खुद भी चलना चाहिए. I also want to Just do it experience. once and you feel like doing all. अब जैसे मेरे मन में आ रहा है, मेरे को व्हाइट सैंड अल्ट्रा भी करना है, मेरे को गोवा भी करना है. Right. एंड फ्रैंकली सेइंग मेरे को शॉर्ट डिस्टेंसेस से ना अब ज्यादा ये लॉन्ग डिस्टेंसेस ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं, बिकॉज दे यू नीड नॉट ट्रेन फॉर स्पीड. आपको एंड्योरेंस बिल्ड करना है तो आपको स्लो रन करना है, इजी रन Slow करना run. है. यू कीप ईटिंग, यू कीप ड्रिंकिंग, यू कीप एंजॉइंग द रूट. मतलब इसमें ज्यादा मजा आ रहा है. और आई थिंक हर एक का अपना गोल होता है. जब भी हम रनिंग में कदम रखते हैं, यू हैव ऑल योर लाइक ऑल आर डिफरेंट, सबके दिमाग में अलग पिक्चर होती है. आई थिंक यू हैव डिफाइंड द पिक्चर रियली वेल. सो मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडियल ट्रेनिंग वीक आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? I guess this is very common for everyone. They runners train for 4 days a week, yeah, and they make sure they include one speed session, one tempo, one slow run also, which is very important. Very. Yeah. So I guess more or less everyone is following the same pattern. Same. And apart from that, it depends on what distance you are going to go for in next event. So you train Absolutely. accordingly. I mean, now if I'm going for 42, definitely I'll train for speed. If I'm going for an ultra, I'll train for endurance. Correct. That changes according to your plan, The goal. Right. goal. बट मैम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, लाइक अगर मैं अपनी भी बात करूं, अब जैसे क्या रहता है, पता सब कुछ होगा लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घपला हम मार जाते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच, और लगा लो कि जल्दी रहती है. जैसे अभी कुछ टाइम पहले तक आई वाज नॉट इंक्लूडिंग द वार्म अप और कूल डाउन, बस वो फॉर्मेलिटी वाला कर लिया, बस चलो जी फटाफट रन करो, भाग के घर आ जाओ. बट आई जस्ट रियलाइज कि विद टाइम ये चीज अफेक्ट करती है आपके फॉर्म को, और धीरे धीरे फिर आपको रनिंग जो है ना वो एक स्ट्रेस लगने लग जाता है. आई थिंक मैं ये क्वेश्चन इसीलिए पूछना चाह रही थी कि रनर्स जो एक्सपीरियंस है उनको तो पता रहता है, द वंस हु आर एक्चुअली स्टार्टिंग, क्योंकि पहला 1 साल तो लर्निंग फेज ही है, सीखते तो चलो हम बाद में भी हैं, बट पहला साल तो बिल्कुल ऐसे ही जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमको देख देख के कॉपी करते रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि भैया सामने वाला पता नहीं कितने सालों की मेहनत है उसकी, हम चाह रहे हैं कि हम एक ही साल में कर दें. वो पॉसिबल नहीं है. तो आई थिंक ये आपने बोला ठीक है कि हाँ ये जर्नल है, आपको अपने गोल के हिसाब से उसको थोड़ा सा स्पेशलाइज करना. दैट्स रियली नाइस. अब मैम जैसे एक तो आपने न्यूट्रिशनल हाइड्रेशन की बात की थी, डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ रेस, राइट. अभी हम जर्नल बात करेंगे, रोज का आपके क्या क्या जुगाड़ है, हाउ डू यू मेंटेन दैट लेवल, क्योंकि नेचुरली ये 2 चीजें तो चाहिए ना. तो आपके पर्सनल जुगाड़ क्या है? अभी लाइक हम लोग जब जैसे सपोज इफ गोइंग, आज हम लोग इंटरवल्स करने वाले हैं, आज हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है इंटरवल वोंट बी नीडिंग कि कुछ खाना है हमको बीच में, बस हाँ हाइड्रेशन प्रॉपर होगा. तो वी कैरी 1 लीटर ऑफ फ्लास्क और इलेक्ट्रोलाइट बना के उसमें लेके जाते हैं. सो इवन इफ यू डोंट हैव इलेक्ट्रोलाइट टैब्स और समथिंग, आप काला नमक और नींबू डाल के वो पानी लेके जाइए अपने साथ, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर स्वेटिंग एंड लूजिंग सोडियम. सो वो बहुत जरूरी है. तो हाइड्रेशन तो ऑन पॉइंट एकदम जरूरी है ही. अदर देन दैट व्हेन वी आर डूइंग लॉन्ग रन, वीकेंड वाले लॉन्ग रन, इफ यू आर गोइंग फॉर 20, 25, 30 किलोमीटर, तो उसमें व्हाट आई हैव बीन थॉट कि एवरी 5 किलोमीटर ईट 1 डेट. वी कैरी डेट्स विद अस. जी जी. तो डेट के अंदर काला नमक डाल के वी कैरी दैट इन अ पाउच. ठीक है. Yeah. Right. So every 5 kilometer we eat 1 date, or at times we even carry 5 star with us. Right.
तो वो खा लेते हैं हम लोग. अदर देन दैट यू स्टार्ट योर लॉन्ग डिस्टेंस रन अर्ली मॉर्निंग आप स्टार्ट करते हो, बट बाय द टाइम इट्स 6-7 काफी दुकानें खुल जाती है, सो यू कैन इवन बाय वन बनाना एंड ईट. या so these things we make sure we eat in a long distance. एटलीस्ट बहुत ज्यादा गैप ना आए. तो ये अच्छा आइडिया है कि आप हर 5 किलोमीटर में 1.5 के अंदर नमक डाला एंड यू कैन ईट दैट, राइट? ऑल राइट. एंड मैम जो आपका प्रोटीन इनटेक है या कार्ब लोडिंग है उसका कैसे आप ध्यान करते हैं? लाइक उसमें कुछ ऐसे स्पेशल कुछ होता है ना DIYs वो क्या है आपके? रन से पहले मेरा तो एक लाइक ये 2 चीज मस्ट है. आई वांट माय कॉफी, ब्लैक कॉफी, राइट, या एंड 1 बनाना. ओके, राइट. So yeah, 1 banana or a slice of bread and peanut butter. It also works. Yeah, that is also fine. You can eat that. And recently I've started, मतलब सिर्फ not just मैं बनाना सिर्फ बनाना नहीं खाती हूँ, मैं बनाना को pieces में कट करके I put a pinch of काला नमक on it and then I have it. Okay, all right, right. And I have seen some people they consume banana along with honey also. I have seen in some videos. I have never been told this thing, but I have seen in that videos. I would say not the thing. So I think black coffee and banana is good. So guys जो सुन रहे हैं भाई सुन सकते हैं इस चीज को फॉलो भी कर सकते हो. Then आपके लिए बनाना तो है ही है, उसके ऊपर आप ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर लो, वो भी एक अच्छा चीज. Yes, namaste sir, how are you? Thank you for joining in. Okay, अब मैम जैसे आपने रन स्टार्ट किया था, you started with a group, but still you must have faced some difficulties. तो वो कुछ ऐसी खास डिफिकल्टी जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? When I was with a running group, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, and I was for very short period with them. उसके बाद मैंने like छोड़ दिया था, and I was not with them. And then I started training individually with just 1 or 2 runners along with me. जी. So frankly saying, like I told you, since I keep learning, I like learning. तो मैं बस चुपचाप सुनती हूँ, learn करती हूँ, whatever they say I follow. I try to follow sometimes, नहीं होता है, मैं डांट भी खा लेती हूँ. So difficulties बस ये आती है कि when you are training आपके लिए कुछ नया है तो वो थोड़ा सा difficult है, and once you get used to it वो easy होता जा रहा है. उसके अलावा मेरे को कोई difficulty नहीं है, because those who were with me they made sure कि सब ठीक रहे. I'm learning in a proper way and I'm going, yeah. So मेरे को ऐसा हाँ, ये मैम ने 2 बातें बहुत अच्छी बताई हैं. बिगिनर्स के लिए ना, एक तो प्लीज सर्च फॉर सच अ कंपनी जो आपको आगे लेकर जाए. दे डोंट पुल यू बैक बट दे शुड पुश यू अहेड. सेकेंड चीज जो इन्होंने अच्छी बताई ना कि आपको हर नई चीज जब आप सीखते हो फर्स्ट टाइम करते हो मुश्किल लगती है, बट उसके बाद कीप डूइंग द प्रैक्टिस. आई थिंक दैट इज द मूल मंत्र जो हर बिगिनर को ना दिमाग में बिठाना चाहिए. हम ना रहते हैं बड़ी जल्दी में सबके सब, अरे आज सीखा है तो बस कल ही हम 21 किलोमीटर कर देंगे उठा के. Right? So I think it's very important to have right people around you, and I'm blessed that I got right people. Like I told you, God had different plans for me, and उन्होंने मेरे लिए ऐसे लोगों को भेजा मेरे आसपास. Like they saw the winner in me even before I started winning, I must say. You know, they would always say, कोमल तू तो बहुत अच्छी रनर है, कोमल तू तो कर सकती है, कोमल you can do it. और आई थिंक ये जो फ्रेजेस है ना, दे रियली मोटिवेट यू. आई थिंक ये आपके अंदर अगर आप 80% करो तो धक्के मार मार के 100% करवा देंगे आप. 100% करवा देंगे. That's how my ultra was. I think I was told God has been kind, so that's really nice. So अब देखिए हम फीमेल्स हैं, वैसे तो मेल्स में भी होती है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी, आई डोंट मेक सम जो लाइक एक्सेप्शनल स्टेटमेंट, बट यस स्किन शैफिंग थोड़ा फीमेल्स बात कम करती हैं उसके बारे में. दैट इज द इशू. सो इसका कोई DIY है क्या आपके पास? अगर कोई बाई चांस कोई वो होता है ना जो मेडिसिनल क्रीम्स होती है वो नहीं कोई लगाना चाहता या सूट नहीं करता, तो उसके अलावा यू हैव सम जुगाड़? Vaseline is the best. Vaseline is the best. And मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, इवन आफ्टर एट टाइम्स अप्लाइंग वैसलीन लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रन में होता है, शॉपिंग का प्रॉब्लम होता ही है, तो स्पेशली समर्स में ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है. एंड इट्स जस्ट लाइक वैसलीन वर्क्स. या